الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بھائی کی دردناک کہانی سنانے والے ہیں۔ یہ کہانی اس کی بہن نے خود بیان کی ہے۔ وہ کہتی ہے، میرا سگا بھائی زانی تھا، لیکن پھر بھی سب خوف کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہتے تھے۔ اس کے بعد ایک رات جب وہ سو کر اٹھا تو اس کا انجام دیکھ کر روح لرز گئی اور سب توبہ توبہ کرنے لگے۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے جس کو آج بھی سن کر لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ یہ ایک حسین اور خوبرو نوجوان کے ایسے عبرتناک انجام کی کہانی ہے کہ جس واقعے نے کئی ماہ کے لیے سارے محلے کو دکھ اور سکتے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا کہ کیسے ایک نوجوان کو کسی کے دل کی آہ لے ڈوبی تھی۔ زبیر ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ وہ نہایت حسین اور مضبوط نوجوان تھا۔ اس کا قد، اس کی خوبصورتی، بدن اور اس کی جوانی کو دیکھ کر ہر شخص اش اش کر اٹھتا تھا۔ وہ تمام محلے کا فخر تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ اتوار کا دن تھا۔ اس گھر میں گویا قیامت کا منظر تھا۔ تمام محلے والے اس گھر کے باہر جمع ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ کھڑکیوں سے جھانکتے تھے تو کچھ دروازوں سے اندر آ چکے تھے۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے اور اس گھر سے آنے والی آواز کو سن رہے تھے۔ ایسی آواز ہم نے آج تک نہیں سنی تھی۔ وہاں کی مکینوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے اپنے وجود قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ بری طرح کانپ رہے تھے اور بنا روتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی امی تابوت کے ایک طرف بیٹی تھی۔ وہ جوان لڑکی ہاتھ جوڑ کر ایک ایک شخص کے پاس جاتی اور کہتی کہ اپنے گھر چلے جائیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، خدا کے لیے اس بات کی تشہیر نہ کریں۔ لوگ توبہ توبہ بھی کرتے، لیکن پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے کہ اس گھر میں یہ سب ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں کوئی تماشا لگا تھا ویسے ہی وہ تماشائی تھا۔ ایسا تماشا کہ جس کو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ یہ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ میری بہن زبیر کی بہن کی بہت اچھی دوست تھی۔ اسی نے میری بہن کو یہ واقعہ اپنی زبانی سنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا نام سویرا ہے، ہم 7 بہن اور بھائی ہیں، 3 بہنیں اور 4 بھائی۔ میرے والد صاحب ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ میرا بڑا بھائی زبیر اس وقت میٹرک کے پیپر دے رہا تھا۔ تمام کچھ اس کے کندھوں پر آن پڑا، لیکن اس نے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین اور لمبا چوڑا نوجوان تھا۔ اس میں بہت طاقت تھی۔ محلے میں سب اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن صرف میٹرک کی ڈگری کے ساتھ ایسی کون سی جاب کرتا کہ سارے گھر کو سنبھالتا؟ اس لیے اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اڈے پر بیٹھنا شروع کر دیا، جہاں اسے دن کے 500 روپے ملتے تھے، لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا۔ اسے تو صرف کھانا پکتا تھا۔ پھر انہی دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور فریب لوگوں کو دینے شروع کر دیے۔ کبھی کسی کو دھمکانا ہوتا تو وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ چلا جاتا اور بدلے میں دوسری پارٹی سے پیسے لے لیتا۔ کبھی کوئی دکان خالی کروانی ہوتی تو وہ طاقت کے دم پر دکانیں خالی کروا دیتا اور جس کی دکان ہوتی اس سے پیسے لے لیتا۔ اس طرح وہ پورے محلے میں سب سے پسندیدہ شخصیت سے سب سے ناپسندیدہ شخص بن گیا۔ وہ ہم سب کا بڑا تھا اور کیونکہ گھر میں پیسے لا رہا تھا اس لیے واقعی میں ہم سب کا بڑا بن گیا۔ یہاں تک کہ میری ماں بھی اس گھر میں اس سے ثانوی حیثیت پر آ گئی۔ اتنا تو ہمارے والد صاحب کا بھی دبدبہ ہم پر نہیں تھا جتنا زبیر نے بنا لیا تھا۔ یہاں تک کہ زبیر سے چھوٹا بھائی افضل بہت اچھی نوکری پر لگ گیا اور اس نے زبیر سے کہا کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیں، اس گھر میں حرام کے پیسے نہ لایا کریں۔ میں نوکری اتنی اچھی کرتا ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو آرام سے پال سکتا ہوں۔ اب ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ بھی اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ میرے بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ زبیر بھائی نے اسے بہت مارا اور کہا کہ چھوٹے ہو،
छोटे बनकर रहा करो। आइंदा मेरे मामलात में बोले तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। अफसोस की बात तो ये थी कि मेरी अम्मी भी मेरे भाई के सामने कुछ ना बोल सकी। इस तरह उसका हम पर इतना दबदबा बन गया कि हम उसकी आहट से ही थर थर कांप जाते। मेरे घर का माहौल इतना बुरा हो गया था कि मेरा घर में दम घुटता था। जब जुबैर भाई घर ना होते तो मैं सामने वाले अपने दोस्त साइमा के घर चली जाती, उसे अपने दिल की बातें करती तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता। एक साइमा ही थी जो जुबैर भाई की बहुत तारीफ किया करती थी, कहती थी कि वो बहुत खूबसूरत और बहादुर है। मैंने कहा कैसी बहादुरी का क्या फायदा जिससे वो लोगों को डरा धमका कर पैसे कमाए। उसका कहना था कि यही मर्द की खूबसूरती होती है कि वो मर्दों की तरह मजबूत और रुअबदार हो। खैर उसका नजरिया अलग था। मैं उसके घर अपने भाई की बातें करने नहीं जाती बल्कि अपने भाई की बातों से जान छुड़ाने को जाया करती थी। मेरे छोटे भाई ने जब से जुबैर भाई को आंखें दिखाई थी तब से जुबैर भाई मजीद गुस्सा हो गए थे। जुबैर भाई का ठिकाना हमारे घर के ऊपर बने एक छोटे से कमरे में था। वहीं पर उनका सामान पड़ा होता। वो रात में अक्सर लेट आते और इधर आकर सो जाते। उस कमरे को साफ किया जाता तो कभी उस कमरे से शराब की बोतलें मिलती तो कभी सिगरेट की बची हुई बाकियात मिलती। मेरे बाबा एक निहायत ही शरीफ इंसान थे और मेरे बाकी के भाई और बहनें भी बहुत ही सादा और मासूम थे। पता नहीं जुबैर भाई ऐसे कैसे हो गए थे। एक सुबह मेरी आंख एक शोर पर खुली कि मेरा भाई जुबैर से लड़ाई कर रहा था। जब मैं उठकर बाहर आई तो मैंने देखा कि कोई औरत जिसने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ है घर से निकली है और मेरे दोनों भाई लड़ रहे थे। मैं हैरान हुई कि ये औरत कौन है। मैं उन दोनों के सामने नहीं आ रही थी, नहीं तो वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल देते, पर मैं छुप कर उनकी बातें जरूर सुन रही थी। मेरे छोटे भाई का कहना था कि इसी चीज की कमी थी, वो भी आपने पूरी कर डाली। आप शराबी हैं, बदमाश हैं, नशा करते हैं, लेकिन अब आप जानी भी बन गए। जब ये बात मेरे भाई के मुंह से निकली तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा भाई एक जानी था, अब ये सिलसिला चल ही पड़ा। मेरा भाई अक्सर उस घर में औरत लाया करता और पिछले दरवाजे से उनको अपने कमरे में ले जाता। मेरा छोटा भाई मेरी अम्मी को बार बार कहता कि आप उसे मना क्यों नहीं करती, लेकिन मेरी अम्मी पर न जाने क्या जादू था कि मेरे भाई के सामने बोल ही नहीं पाती थी। मेरा छोटा भाई बहुत गैरती था। जब उसे पता चला कि उस घर में ये बुरे काम हो रहे हैं तो हम सबको एक अलग घर ले जाने लगा, लेकिन मेरी माँ ने जाने से इनकार कर दिया और उसका कहना था कि मैं नहीं जा सकती। जब बुरा वक्त था तो उसी बेटे ने मेरा साथ दिया। उसका दिमाग बदल जाएगा। मैंने अल्लाह से दुआ की वो ये सारे काम छोड़ देगा। मेरा भाई हम सब बहन भाइयों को एक अलग घर में ले गया। उसने वो घर किराए पर लिया था और वहां पर बहुत ही सुकून था। मैं तो बीच में फंस गई थी, कभी उस घर में रहती तो कभी अपनी अम्मी के पास चली जाती। अम्मी हर बार परेशान होकर यही बताती कि तुम्हारे भाई के रवैये में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि अब तो उसने मुझसे भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छे रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने उसे समझाया कि मत करो, वो तो बहुत अच्छा इंसान है जिसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। तो उसका कहना था कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मेरी दोस्त कुछ बदली बदली लग रही थी, न जाने उसके साथ क्या चल रहा था। शायद उसके घर में कोई मसला था। हमारे घर में भी तो हजारों मसले थे। मैं अपने दूसरे भाई के घर चली गई और 3 दिन के बाद जब वापस आई तो एक खबर ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी कि मेरी दोस्त साइमा ने खुदकशी कर ली है। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उसकी माँ इस तरह रो रही थी कि जैसे उसके लिए तो आज ही कयामत आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी दोस्त ने ऐसा क्यों किया। उसके घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। उनका कहना था कि चुप रहती थी, कुछ नहीं बताती थी। मैं अपने दोस्त के कमरे में खड़ी थी और उसे याद कर रही थी जब मेरी आंखों ने कुछ देखा। मेरे दोस्त के तकिए के पास एक कलाई में पहनने वाला ब्रेसलेट पड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वही ब्रेसलेट मेरे भाई जुबैर का था। मेरे दिल में फौरन ख्याल आया कि कहीं मेरे भाई जुबैर और मेरी सहेली साइमा के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था और मेरे भाई ने उससे शादी से इनकार किया तो उस बेचारी ने खुदकशी कर ली। कहीं वो काली चादर वाली लड़की मेरी दोस्त तो नहीं थी।
साइमा के माँ बाप बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए, वो जगह ही छोड़कर चले गए। जाने से पहले साइमा की माँ मेरे घर आई, उसके हाथ में एक डिब्बा था। उसने कहा, इसमें साइमा की कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती हैं, और वो तो इस दुनिया में नहीं रही, तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। हम लोग तो ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, अब हमसे यहाँ रहा ना जाएगा। बस मेरी दुआ है कि जिसने भी मेरी बेटी को ये सब करने पर मजबूर किया, अल्लाह उसको ऐसा इबरतनाक अंजाम दे कि सारी दुनिया उसका तमाशा देखे। साइमा की अम्मी ने झोली उठाकर बद्दुआ दी थी, वो वहां से चली गई। मैंने डिब्बा खोला तो उसमें साइमा की वो चीजें जिनसे साइमा को बहुत लगाव था, उसमें लॉकेट भी था जो साइमा हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। वो दिल वाला लॉकेट था जो खुलता भी था। मैंने उसको खोला तो मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके अंदर मेरे भाई जुबैर की तस्वीर लगी थी। इसका मतलब मेरा भाई ही साइमा की मौत का जिम्मेदार था। कई महीनों तक दिल भारी रहा, साइमा की याद आती रही। कभी ख्वाबों में आती थी तो कभी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। जिस शख्स से उसने मोहब्बत की वही उसकी मौत की वजह बन गया। वक्त गुजरने लगा, मेरा भाई बुरे से बुरे की तरफ जाने लगा। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अब तो सारे मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई थी कि ये मोहल्ले का सबसे बद किरदार इंसान है। लोग तो हमारे उस घर के पास भी गुजरना पसंद नहीं करते थे जहां पर मेरा भाई रहता था। मेरे छोटे भाई ने मेरी शादी करवा दी और बाकी बहन भाइयों को पढ़ा रहा था। मेरी माँ अब भी मेरे बड़े भाई जुबैर के साथ ही रहती थी। उस घर में लोग रोज आते, कोई कहता कि उसने हमारे पैसे खाए, कोई कहता था कि उसने पैसे डबल करने का वादा किया और पैसे वापस नहीं दिए, तो कोई कहता था कि हमारी जमीन उसने छीन ली। किसी की शिकायत ये होती थी कि झूठी गवाही दिलवाकर उसने हमारा केस खराब करवाया। फिर एक रात आधी रात को हमारी अम्मी की कॉल आई। हम सब घर की तरफ भागे। अम्मी का कहना था कि जुबैर रात को बहुत नशे में था, शराब पीकर आया था और तब से उसकी हालत ऐसी है। जब हमने जुबैर की हालत देखी तो हमारे हाथ पांव कांपने लगे। न जाने साइमा के दिल से निकली आह थी या उसकी माँ की बद्दुआ या उन हजारों माओं, बहनों और बेटियों की बद्दुआएं जो मेरे भाई ने ली थी कि मेरे भाई की जान उसके गले में अटक गई। वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। जब उसके जिस्म पर कोई भी जख्म नहीं था। मेरा भाई उस वक्त 40 साल का हो चुका था। सारी जिंदगी उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था। उसकी चीखें तमाम मोहल्ले में गूंज रही थी और लोग हमारे घर में बैठे तौबा तौबा कर रहे थे। उसका इतना इबरतनाक अंजाम होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो हम सब उन चीखों को सुनकर यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसकी जान निकल जाए ताकि इसको सुकून मिल जाए। मेरा वो खूबसूरत गबरू नौजवान भाई जिसकी खूबसूरती और बहादुरी के पूरे मोहल्ले में चर्चे थे, आज अंजाम पर पहुंच गया था। ऐसा लगता था कि कोई उसे ज़िबा कर रहा था। फिर उसकी जान नहीं निकल रही। हम सबको जो भी सूरत आती थी वो हमने पढ़नी शुरू कर दी। मोहल्ले के कारी साहब भी आ गए और उन्होंने भी सूरतों का विर्द शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह से जान निकलने में आसानी होगी। माँ तो माँ होती है, उसके लिए उसकी औलाद से कीमती और क्या होता है। मेरी माँ को देखकर मेरा दिल मुंह को आ रहा था। वो जाने कहाँ देखती हुई एक कोने में जमीन पर बैठी थी। आखिरी वक्त पर मेरे भाई की शक्ल ऐसी हो गई थी कि वो पहचाना नहीं जा रहा था। ऐसा लगता था कि ये कोई और शख्स है। उसका चेहरा बिल्कुल बेरौनक हो गया था और आंखें बिल्कुल पत्थर हो गई थी। यहाँ तक कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। 12 घंटे की तकलीफ और इस तमाशे के बाद मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। 2 साल बाद मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। शायद अपने बेटे की मौत का गम उन्होंने दिल में बिठा लिया था। इस बात को आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल पहले 20 साल का था, आज मेरी उम्र 32 साल हो गई है। लेकिन आज भी कोई जुबैर की इबरतनाक कहानी को भूला नहीं है, बल्कि लोग उस कहानी को एक दूसरे को सुनाते हैं। सच कहते हैं कि कुछ गुनाहों की सजा इस दुनिया में मिलती है और जिना एक गुनाह कबीरा है। लोग दौलत के नशे में गुम होकर अपनी असलियत पर आ जाते हैं। कहते हैं कि जो काम आप अपनी तन्हाई में करते हैं वही आपकी
असलियत है। पता नहीं मेरे भाई को इस मकाम तक पहुंचाने में कसूर किसका था, उस बदमाश दोस्तों का या फिर उसकी खूबसूरती और जवानी का, जिसके गुरूर में आकर उसने ये सब कुछ किया। कहते हैं कि जब आपके पेट में हराम के निवाले जाना शुरू हो जाएं तो उसके बाद आपका काम और फेर भी पूरे हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। मैं आज भी हर नमाज के बाद जुबैर के लिए उसकी मगफिरत की दुआ करती हूँ कि कम से कम उसकी आखिरत में ही उसके साथ कोई रियायत हो जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।